So, dear students, let us start with counting lines, words, characters in a file. WC. WC command is used to count the number of lines, words, and characters in the specified file or files. The WC command can be used along with three options. Which are those options? L, W and C. Okay, so counting lines. So उसके लिए L है, words के लिए W और characters के लिए है C respectively. For instance, to execute the following command to count the number of lines in the introduction.txt. In this file, see here WC minus L introduction.txt. So for .text. Similarly, the command WC minus W introduction.txt and then WC minus C introduction.txt will give us the count, the number of words and characters in the file. To get all the introduction together, we can use the command as shown below. WC minus L, W and C. The minus L, minus W and minus C. Introduction.txt. इसमें क्या होगा, माइनस एल से लाइन्स कितनी है तो 4 है, वर्ड्स कितने हैं तो 49 है और कैरेक्टर्स कितने हैं तो 307 कैरेक्टर्स है introduction.txt वाली फाइल में. ओके, नाउ दिस इज द थिंग. ओके, इस पे भी क्वेश्चनिंग आपको किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो. LH माइनस L. अब यहाँ पे टोटल जो आता है टोटल 6 है. लाइन्स कितनी है 6. यहाँ पर देखिए कुछ आपको RR WR इस तरह से दिखाई दे रहा है. फिर एडमिनिस्ट्रेटर, अबाउट गांधी जी, इंट्रोडक्शन, एड्रेस, बैकअप, सिटी, साइंस. ठीक है, स्क्रिप्ट 10.sh. नाउ हियर observe that the output it gives us a clear idea about the object in the R file system. An object can be categorized as a regular file, directory or a process. Object कौन से होंगे? 3 तरह के होंगे. एक तो रेगुलर फाइल होगी, या कोई डायरेक्टरी होगी, या कोई प्रोसेस होगी. It shows us the owner of the object, size of the object, date and time on which the object was created along with the name of the object. Let us try to understand the file permission in detail. Okay? अभी सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि permissions क्या होती है. Shows this figure 6.17 shows the relation of different permission WRT, that is with respect to owner, group and other users. So what is this about? Let us try to get this point. Here, can you see this? 1, 2, 3, 4 up to 10 numbering is met. And very first is type of the object. Up to 2 to 4 owner permissions are there. Read, write or execute. Then group permission, read, write or execute 5 to 7. And up to 8 to 10. Other users permission. So from 1 to 10 these are the permissions indicated for which type of object it is and owner or group or other user permission. So all these are the file permissions, right? We can observe these things. Now dash in the first column refers to file. ठीक है, अगर यहाँ पर पहले कॉलम में डैश है तो ये कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट है. अगर डैश है तो ये फाइल है. ठीक है, अगर उसके बदले में डी आया तो वो क्या होगा, डायरेक्टरी होगा. अगर पी आया तो वो प्रोसेस होगी. ठीक है, तो ये हमारे जानने के लिए है. द नेक्स्ट 9 कैरेक्टर्स टेल्स अस द सिस्टम व्हाट एक्सेस इज परमिटेड फॉर दिस ऑब्जेक्ट. अगर ये ऑब्जेक्ट है, फाइल है या डायरेक्टरी है या प्रोसेस है तो उसके लिए किस टाइप का परमिशन दिया गया है वो हमें आगे के 9 कैरेक्टर्स बताएंगे. ठीक है, इसीलिए R, W एंड X ये दिया हुआ है. अब ये सेट ऑफ 3 कैरेक्टर्स जो होता है आफ्टर द फाइल टाइप शोन इन कॉलम 2 to 4 टेल्स विच परमिशन
the owner of the file has. The owner of the file is the user who created that file. फाइल का जो भी ओनर होता है ना, वो होता है यूज़र ऑफ दैट फाइल, जिसने कि बनाया है उस फाइल को, ठीक है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा हमारे इस केस में. अब यहाँ पर कैरेक्टर आर जो है, फर्स्ट ऑप्शन मीन्स दैट यू आर परमिटेड टू रीड दैट फाइल ओनली, ओके, एंड डब्ल्यू फॉर द सेकेंड पोजिशन मीन्स दैट यू मे राइट इन द फाइल. डब्ल्यू अगर है तो राइट भी कर सकते हो. दिस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू डिलीट द फाइल. And X in the third position means you may execute the file. The hyphen in any position means you don't have the particular permission. अगर वहाँ पर सिर्फ डैश दिया है तो कोई भी पर्टिकुलर परमिशन नहीं है, इसका ये मतलब है, ठीक है. As you can in the output of ls-l command, the administrator, the user who owns the file can read the file and write files like about gandhiji.txt, introduction.txt, address.txt, like this. The characters in column 5 to 7 denotes permissions given to the group to which user belongs. Similarly, the character in column 8 to 10 denote permissions given to any other user or group. Generally, the term other refers to the users of the system that do not belong to the group to which the owner of the file belongs. A user, if wishes, can change the permission of an object that he or she owns. Next one is the file permission can also be given as numeric representation. We use octal, that is base 8 number system, to representing the permissions as numeric values. Now every octal digit combines this read, write and execute permissions together. For example, यहाँ पर octal digits अगर use करेंगे 644, 6 refers to the right of the owner, 4 refers to the right of the group and 4 refers to the rights of the others. Okay. Now next one is द परमिशन 0644. अगर हमारे पास ऐसा डिजिट है 0644, when assigned is interpreted as read write permission to owner, only read permission to the group and others. Table 6.6 shows the interpretation of octal numbers when used as permission. अब यहाँ पर जो टेबल 6.6 है, ये ऑक्टल नंबर के परमिशन दिए हुए. कैन यू सी दिस टेबल? यस. वेरी फर्स्ट कॉलम इज परमिशंस इन टेक्स्ट मोड. सेकेंड वन इज परमिशंस इन ऑक्टल मोड. थर्ड वन इज इट्स मीनिंग. तीनों अगर डैश है, इसका मतलब है कि आपको कोई भी परमिशन असाइन नहीं है. अगर सिर्फ डैश डैश एक्स लिखा है तो ओनली एग्जीक्यूट एक्सेस इज अलाउड. और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, बीच में डब्ल्यू लिखा है, दैट मीन्स राइट एक्सेस अलाउड है. 2 नंबर होगा उसके लिए. देन डैश डब्ल्यू एक्स है, 3 नंबर है. परमिशन इन ऑक्टल मोड 3. राइट एंड एग्जीक्यूट एक्सेस आर अलाउड. देन आर माइनस माइनस है तो ये 4 नंबर है. ओनली रीड एक्सेस इज अलाउड. आर माइनस एक्स जो है 5. रीड एंड एग्जीक्यूट एक्सेस आर अलाउड. आर डब्ल्यू डैश 6 number, read and write access are allowed. And RWX 7 number, everything is allowed. Okay. So these are regarding the access permissions. Okay. और permission mode जो भी octal में होते हैं. अब changing, अगर permission change करनी है तो उसके लिए एक command होता है बच्चों, chmod. chmod जब भी user group या फिर others के लिए दिया जाता है, UGO-W introduction.txt. Here character U in the above means user, G for group, O for other. Okay. After executing the command, if we again list the file, then output will be similar to the one as shown. यहाँ पे ls-l होगा और ये permissions दे देगा. यहाँ पर क्या है उसके अकॉर्डिंग ये ओपन करेगा. ls-l मतलब लाइन कितनी है वो लाइन काउंट करके यहाँ पे लिखेगा भी.
तो ये 1 लाइन है और ये पूरा कंटेंट है उस फाइल का, ठीक है. दैट्स ऑल. This operation will not be permitted on this file. Additionally, it also prevents user from deleting the file intentionally or unintentionally. Okay, to assign write or execute permission to the owner. अब यहाँ पे कुछ परमिशन था ही नहीं, इसीलिए नहीं हुआ. chmod अगर आपको परमिशन असाइन करनी है तो इस तरह से एक्सप्लिसिटली कमांड देना पड़े, ठीक है. अब उसके बाद में ये आगे का भी दिया है ls-l स्क्रिप्ट 10sh. आपके बुक्स में अलग अलग स्क्रिप्ट्स दी हुई है, वो बहुत ही छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स है. यू कैन गो थ्रू दैट स्क्रिप्ट्स. दीज आर इंटरेस्टिंग वन टू अंडरस्टैंड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज JIS1 कैटेगरी ऑपरेशन एंड परमिशन. दीज आर एब्रिविएशंस यूज्ड बाय chmod कमांड. ये कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से ऑपरेशंस है और क्या क्या परमिशंस दी जाती है. R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट. ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है ऐड, तो यूज़र प्लस माइनस रिमूव परमिशन एंड इक्वल टू असाइन, दैट इज एब्सोल्यूट परमिशन. सो ऑल दीज आर रिगार्डिंग chmod कमांड एंड इट्स यूज. नेक्स्ट इज पाइपिंग. पाइपिंग में होता है जब भी हमें मल्टीपल लाइंस को एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है तब हम ये यूज़ करते हैं. रीडायरेक्शन फैसिलिटी डिस्कस्ड अबाउ हेल्प्स इन एसोसिएटिंग द लिनक्स कमांड्स टू द फाइल्स. मेनी टाइम्स वी नीड टू यूज़ मल्टीपल कमांड्स टू परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन. ठीक है, मल्टीपल कमांड्स लेकिन ऑपरेशन एक ही परफॉर्म करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, पाइपिंग फैसिलिटी है लिनक्स में, तो हम लोग बहुत सारी कमांड्स एक साथ लिख सकते हैं. पाइप सिंबल इज यूज टू प्रोवाइड आउटपुट ऑफ दिस वन कमांड एज एन इनपुट टू अनदर कमांड. एक कमांड यूज किया, इसका आउटपुट जो आ रहा है वो इनपुट जा रहा है दूसरी कमांड को. ठीक है, इस तरह से हम कई सारी कमांड्स एक साथ यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसे पाइप बोला जाता है. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ls पाइप wc-l. तो ये कमांड इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, आगे है फिल्टर्स वाला पार्ट. अगर आपको हेड या टेल ही लेना है तो वो फिल्टर करने का पार्ट भी काम भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. अगर हमें पहले आगे वाली 10 लाइन ही चाहिए, पीछे का नहीं चाहिए, तो हम हेड वाली कमांड यूज़ करेंगे. तो हेड -2. सो ये कमांड हम यूज़ करने से आगे की 2 लाइन्स ही सिर्फ आएंगे डिस्प्ले में. उसी तरह से टेल वाला कमांड है डिस्प्ले लाइन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फाइल. तो टेल -2 इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट, तो इससे लास्ट वाली 2 लाइन्स आ जाएंगी. ठीक है, और इसी तरह से हम अलग अलग कमांड्स यूज़ कर सकते हैं. तो कई सारी कमांड्स है बच्चों, उसे आप एक्सप्लोर और कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल, मेनी आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट ऑल. लगभग सारी कमांड्स हमारी हो चुकी है, सिर्फ एक पार्ट ही बाकी है अभी इसमें, सॉर्ट वाला. वो हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सॉर्ट एंड ग्रेप, आई थिंक दीज आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग.